Hello, my dear students. Welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start, or you can say, we are going to complete the question answer section of our chapter number 7. Okay, so as you can see on our screen, first of all, what we are going to do? Complete the sentences given below by choosing the correct option. Okay, Moina was called YY girl because she asked too many questions. Okay, this is the correct answer. Then Moina was stubborn, obedient, and polite. She was a stubborn. Okay. Moina was a dash of the village babus. Okay, goat herd. Okay. Moina could come to school only after how many years? You can see here. Let's see. So students, our question number 4 answer is option number 2, that is 11. Now explain the following sentences with reference to the context. यहाँ पे ये जो 6 लाइंस लिखी हुई है आपको इनको एक्सप्लेन करना है चैप्टर्स को रिलेट करके, ठीक है? तो देखिए पहला क्या है, डिड ही थैंक मी, व्हाई शुड आई थैंक हिम। ये मोइना ने ये लाइन बोली थी और मोइना ने ये लाइन अपनी मम्मी को बोली थी, लेकिन क्यों बोली थी? तो देखिए इसका आंसर ये है। कैसे आप इसको चैप्टर से रिलेट करके एक्सप्लेन करोगे? तो देखिए Moina said this line because Moina said this line because Moina thought, according to Moina, she used to sweep the cow shed and do 1,000 jobs for him. But in return, did they thank Moina? Why should Moina thank him? So this is the answer of your 1, B का 1. ठीक है, जो फर्स्ट लाइन। अब दूसरा देखिए क्या है, I like her. She is so obstinate and unyielding. Okay, so ये लाइन ऑथर ने कही थी किसके बारे में? मोइना के बारे में। क्यों कही थी? देखिए, क्योंकि देखिए मोइना, इसका आंसर ऐसे आप लिखोगे, दिस लाइन इज वेल सेड बाय ऑथर रिगार्डिंग मोइना बिकॉज मोइना इज अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड, ओके, एंड एज वेल एज शी इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके, कॉन्स्टेंटली शी इज आस्किंग क्वेश्चंस, ओके, दैट्स व्हाई ऑथर लाइक मोइना वेरी मच। ओके, देन व्हाट आर टाइम आई हैड दैट अक्टूबर, ठीक है, तो ये लाइन भी ऑथर ने कही थी। क्यों कही थी? कि मोइना अक्टूबर के टाइम पे अपनी मम्मी के साथ 1 मंथ के लिए समिति के हट में रहने के लिए आई थी, ठीक है, ये है इसका आंसर। फॉर वंस मोइना वॉज साइलेंट, यस, for once Moina was silent because Moina got to know that all the answer of her questions, okay, all the answer of her question is already mentioned in the book, okay, so for the first time Moina was really silent in her entire life. Then question number 5, then she saw me and fled with her goat, okay, so इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, देखिए 5th का है, सी, तो आप ऐसे लिखोगे, मोइना वॉज कॉन्स्टेंटली आर्गुइंग विथ, ओके, इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, मोइना वॉज कॉन्स्टेंटली आर्गुइंग विथ मालती, ओके, बिकॉज she wants to learn, okay, she wants to learn in the school, okay, and she tell the old lady, okay, and she tell the old lady that none of us goat herd and cow herds can come if the hours are not changed, okay, then all of a sudden she saw author and fled with her goat. Maybe Moina at that time was feeling shy or maybe guilty, okay, so ये है आपका बी का 5th का आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आपसे पूछा जा रहा है, and the other children too are learning to ask why. Yes, this line is well explained by Moina, okay, because due to the curious nature of Moina, all the children started asking questions in the form of why, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे। देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट है, व्हाट डिड मोइना से व्हेन द ऑथर ट्राइड टू स्टॉप हर फ्रॉम चेजिंग अ स्नेक, ठीक है, मोइना ने क्या कहा था? मोइना सेड व्हेन द ऑथर ट्राइड टू स्टॉप हर फ्रॉम चेजिंग अ स्नेक, सो सी का आंसर 1 ये है आपका, सी का 1 का आंसर ये है, वी एट स्नेक्स यू नोट द हेड, ओके, द हेड यू चॉप ऑफ द स्नेक यू सेल द मीट वी कुक, ठीक है, ये लाइन मोइना ने कही थी, तो ये आपका
आंसर नंबर सी का 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वर्क डिड मोइना डू, मोइना क्या काम करती थी? तो देखिए सो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सी का 2 का आंसर है मोइना ब्रिंग, ओके, मोइना ब्रिंग बाबूज गोट होम, ओके, एंड शी यूज्ड टू कलेक्ट firewood and fetch water and lay traps for the birds. Okay, this is your question number 2 answer. Okay, then third, did Moina agree to thank the Babus for what they did for her family? Why? No, Moina didn't agree to thank the Babus for what they did for her family because Moina also used to work for them. Okay, but in return, they didn't thank Moina. Okay. Fourth one, why did the author like Moina? Author liked Moina because Moina is really a stubborn child and as well as she was full of curiosity. Okay, constantly she is asking so many questions. Okay, and due to this, Moina is known as a chit chat girl, or you can say YY girl in her village. Okay, and this nature of Moina is very much is impressing. Okay, this nature of Moina impressing author. ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या है? हाउ इज मोइना डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इन हर कम्युनिटी? प्रोवाइड सम एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर. यस, इट इज वेरी ट्रू दैट मोइना इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल इन हर कम्युनिटी. ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया. अब आपको एग्जांपल्स देने, तो इसका एग्जांपल आप ऐसे दोगे, देखिए. सो सी का फिफ्थ का आंसर ये है, Moina was a suburb and the suburbs were very poor and landless, but the other suburbs never complained. Only Moina questions were endless. Okay, तो ये सी का फिफ्थ का आंसर है. ठीक है, इसीलिए मोइना अपने बाकी कम्युनिटी के लोगों से बिल्कुल अलग थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What did Moina bring to Samiti hut when she went to live there? क्या लेके आई थी वो? बेबी मंगूश लेके आई थी. देखिए, तो इसका आंसर ये है आपके पास. ओके स्टूडेंट, आपके सी के सिक्स का आंसर ये है. ओके, मोइना ब्रिंग बेबी मंगूश टू द समिति. ओके, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, मोइना ब्रिंग अ बेबी मंगूश टू समिति हट when she went to live there. Okay, now seventh one, mention some questions that Moina asked. Do you think they were sensible questions? तो इसमें दो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो हम पहले का आंसर देते हैं. Mention some questions that Moina asked. Okay, so following are the questions that Moina asked. ठीक है, तो देखिए. So सेवेंथ का पार्ट ए का आंसर है, फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मोइना आर. 1, आप इसको 1 2 3 नंबरिंग के साथ करोगे. सो पहला है, व्हाई शुडंट आई कैच अ कोबरा? ये आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, ओके. देन दिस इज 2, बट व्हाई? ओके. देन who will bring Babu's goat home and collect firewood and fetch water and lay traps for the birds? ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो मोइना ने पूछा है. ठीक है, उसके बाद फिर ये होगा फोर्थ. ये फोर्थ है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, why didn't I have to sweep the cow shed and do 1,000 jobs for him? Okay, then this one. Okay, this is your fifth. Why do I have to walk miles to the river for water? Why do we live in a leaf hut? Why can't we eat rice twice a day? This is your fifth one. Okay. Similarly, students, इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मोइना ने पूछा, आप नंबरिंग देके उसको लिखेंगे. ठीक है, अब आपसे एक सेकंड पार्ट भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये सेंसिबल क्वेश्चंस हैं? जी बिल्कुल, ये सेंसिबल क्वेश्चंस है. तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, यस, अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग लेवल they were sensible questions. ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर इतना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनको सारी आंसर्स कहाँ से मिलेंगे. ठीक है. Eighth one, why did Moina say I will learn to read and get to know the answers to my questions? Okay, so Moina ने ये क्यों कहा था कि I will learn to read and get to know the questions to my answers?
So Moina said this line, I will learn to read and get to know the answer of my questions, because according to Moina, okay, all the answers of all the question of all the answers of her question is already mentioned in the books. That's why she needs to learn reading and writing. Okay. Then why did Moina challenge Malati? मोइना ने मालती को क्यों चैलेंज किया था? इसीलिए किया था ना कि आप स्कूल की टाइमिंग बदल दीजिए, क्योंकि मैं 11 बजे तक तो मैं बाहर ही रहती हूँ, उसके बाद आप लेकर आइए, ठीक है, चेंजेस लेके आइए, ठीक है, यही है इसका आंसर. इफ यू पास द स्कूल यू आर श्योर टू हियर हर इम्पेशेंट डिमांडिंग वॉइस. Was Moina a good or bad teacher? Explain with reason. Yes, Moina is a good teacher because, okay, इसका आंसर ऐसे आप लिखोगे, Moina is a good teacher because Moina, okay, Moina used to teach in Samiti school, okay, and due to Moina's curious nature, all the students of the village started asking the questions, okay. So ये आपका आंसर नंबर 10 है. ओके स्टूडेंट, अब डी देखिए हमें क्या करना है. सम क्वालिटीज ऑफ मोइना आर मेंशन्ड बिलो, राइट लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट ईच क्वालिटी. सो स्टूडेंट ये 7 क्वालिटीज मोइना के अंदर हैं, ठीक है, पर इनमें ये सारी क्वालिटीज को कौन सी लाइंस रिफ्लेक्ट करती हैं आपको चैप्टर से सेलेक्ट करना है, उसको लिखना है. जैसे इनक्विजिटिव, ओके, इनक्विजिटिव ये कौन सा लाइन शो करता है मोइना के इस नेचर को? तो देखिए इसका आंसर ये है, इनक्विजिटिव का डी का पहला है, व्हाई शुडंट आई कैच अ कोबरा, व्हाई शुड यू, ठीक है, ये है डी का पहला जो मोइना के इस नेचर को जस्टिफाई करता है. तो मोइना का दूसरा नेचर क्या है, देखिए, स्ट्रॉन्ग विल्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल्ड. तो इसको डिस्क्राइब करता है ये वाला लाइन. सो ये लाइन डिस्क्राइब करता है इसको कि मोइना को जब मना किया गया था कोबरा को कैच करने के लिए, ठीक है, तो ये तो उसका इनक्विजिटिव है कि उसका क्वेश्चन पूछा, लेकिन मोइना ने ये भी डिसाइड किया था कि मैं इसी स्नेक को पकड़ूंगी, ठीक है. तो आप इसी लाइन को अपने वर्ड्स में दोबारा कन्वर्ट करके लिखोगे कि मोइना का ये स्ट्रॉन्ग विल था कि यस मोइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल, ओके, एंड इमीडिएटली शी डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू कैच दिस कोबरा स्नेक, ओके. नाउ द नेक्स्ट, लेट्स सी कौन सा उसका बिहेवियर है, आई मीन नेचर उसका. सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट कौन सी लाइंस इसमें शो कर सकती हैं, देख लेते हैं. ओके देखिए डी का थर्ड है, आई विल लर्न टू रीड, आई विल लर्न टू रीड एंड गेट टू नो द आंसर्स टू माई क्वेश्चन, ओके. ये डी का थर्ड है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल मोइना का पता चलता है कि मैं पढ़ूंगी और अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं खुद ढूंढूंगी, ठीक है. सो स्टूडेंट इसी तरीके से मोइना के बाकी नेचर के बारे में भी, फॉर्म, इंटेलिजेंट, केयरिंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आप इसी तरीके से टेक्स्ट को लेके लिख सकते हैं, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है. चलिए अब एप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट देख लीजिए. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द वर्ड बट व्हाई, व्हाट थॉट कम्स टू योर माइंड एज यू रीड दिस वर्ड्स, व्हाट डू द वर्ड्स टेल यू अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. सो स्टूडेंट सी, the central idea of the story is why, okay. In this entire story a girl named Moina, okay, a girl named in this entire story, this story tells about a girl named as Moina and who is known as why girl, because constantly she is asking questions in the form of why, okay. Then two, Moina's question made everybody tired, but in fact her curiosity was her greatest strength. Do you agree? Support your answers by citing evidence from the story. So student, yes, I agree that Moina's question made everybody tired, but in fact her curiosity was greatest strength. ठीक है. So आप क्या करोगे, चैप्टर से, आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, तो इस आप एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, ठीक है. चलिए वर्ड पावर देखिए. Basketry is the term used to refer to the art of basket weaving. Write the terms for the following. So student, basketry का मतलब क्या होता है, बास्केट बनाने की कला, ठीक है. उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी आर्ट के बारे में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, उनका परफेक्ट वर्ड यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया है यहाँ फिल करना है. ऑप्शंस आपके नीचे यहाँ दिए हुए हैं, कुछ मैं करूंगी कुछ आप करेंगे. जैसे आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर वेरी इजी, ये आपकी फोटोग्राफी है,
तो ये रहा फोटोग्राफी। आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स फ्रॉम स्टोन, क्ले और वुड, इसे क्या कहा जाता है? इसे स्कल्पचर कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आर्ट ऑफ मेकिंग डिशेस, पॉट्स एक्सेट्रा फ्रॉम क्ले, पॉटरी है ये। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, देखिए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के आर्ट को कहा जाता है कैलीग्राफी। ओके, देन आर्ट ऑफ मेकिंग डेलिकेट ऑर्नामेंटल वर्क यूजिंग ट्विस्टेड गोल्ड और सिल्वर वायर, सो स्टूडेंट इसको फिलीग्री कहा जाता है। ठीक है, इसको फिलीग्री कहा जाता है। सिक्स देखिए, डेकोरेटिव क्राफ्ट इन विच वन फैब्रिक इज स्वेन इन डिफरेंट पैटर्न्स इनटू onto another, this art is known as applique work. ओके, सो बाकी का आप इसी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, अब हम ग्रामर पावर देखेंगे, जहां पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कॉन्कर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे से खुद से पढ़ेंगे। चलिए मैं अब एक्सरसाइज करती हूँ आपके साथ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, आपको सही वर्ब वर्ड को चूज करना है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। सो पहला है, you all has have to meet me after the class, said the teacher. So students आप इतना तो जानते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं हम हैज यूज करते हैं, जब सिंगल के बारे में बात करते हैं तो सॉरी जब ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हैव यूज करते हैं और सिंगल तो हैज। सो यू ऑल हैव, ओके, सो ये सब करेक्ट ऑप्शन है, you all have to meet me after the class, said the teacher. सेकंड देखिए, it seems that it will rain heavily today. It seems that it will rain heavily today. ठीक है, चलिए, द राइजिंग ऑरेंज सन एट द हॉरिजन लुक्स ब्यूटिफुल। आई ट्रस्ट गॉड ऑलवेज, आई ट्रस्ट गॉड ऑलवेज। द न्यूज इज आर ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। देन आइदर मोनिका और मयंक हैज हैव टेकन माई बुक, आइदर मोनिका और मयंक हैज टेकन माई बुक। Then each of the dancers are performing wonderfully. Each of the dancers is performing wonderfully. Okay? So student इसी तरीके से बाकी का भी आप पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते क्या है। Speaking and listening. People eat different things in different parts of the country. What is the staple food of the region you belong to? Talk about some special cuisines cooked at home. If possible, share its recipe with the class. Also explain why it is your favorite food. So students, आप इतना तो जानते हो हमारे कंट्री इंडिया के लोग अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं। तो अब आप ये बताएंगे जिस एरिया में आप रहते हो वहां का कौन सा फेमस खाना है। ठीक है, साथ ही साथ आपके घर में कौन कौन सा स्पेशल खाना बनता है, और अगर पॉसिबल हो तो जो भी आपका फेवरेट खाना है जो आपके घर में बनता है उसकी रेसिपी आप अपने क्लास में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बी, लिसन टू सम स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी केयरफुली एज अ टीचर रीड्स देम अलाउड, मार्क देम एज ट्रू और फॉल्स। देन imagine you are Moina, you are grown up and teach at the Samiti school. Remembering your own childhood experience, what advice would you give to your students? Write a speech expressing your views on the importance of education and its role in changing the face of the society. So students, आपको खुद को imagine करना है कि आप मोइना हैं, ठीक है, और अब आप समिति के स्कूल में टीचर आप पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, आपको वहां पे अपना खुद का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस याद आता है, कैसे आप क्वेश्चंस पूछा करते थे, क्योंकि अभी आप खुद को मोइना मानते हैं। ठीक है, तो आपको एक स्पीच डिलीवर करना है और आपके स्पीच का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट भी आपको एक बनाना है, मेक अ कलेक्शन ऑफ सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स एज वेल। आपको क्या करना है, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को गैदर करना है, उनका आंसर लिखना है। ठीक है, होल्ड अ क्विज सेशन इन क्लास वेयर यू विल आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस इन टीम्स। क्विज सेशन आप करेंगे टीम्स में, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड ये आप लोग को करना है। ठीक है, okay student, this is all about our chapter number 7. Now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.